ओके Recording सर। start हो चुकी है। हाँ तो से आप पॉज करके देख लीजिए जब। So I welcome you all to this session on our basic course in thermodynamics and its application. Last 12 lectures में मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए। मैंने आपको फर्स्ट लॉ बताया क्या होता है, मैंने आपको सेकंड लॉ बताया, उसे अप्लाई करना सिखाया। हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करी, उनके ग्राफ्स के बारे में बात करी, हमने कर्व प्लॉटिंग के बारे में बात करी, कैसे पीवी और टीएस डायग्राम पे कर्व प्लॉट करेंगे। उसके बाद डेफिनेटली इसे करने के लिए हमने स्टीम टेबल को समझा कि स्टीम टेबल कैसे बनाई गई, कैसे देखना है उसे। डूइंग ऑल दिस then we have started and I have solved some previous year questions for you in the last class. Last class was basically dedicated to how to attempt gate problems. Now lecture, our new lecture today, I'll be starting with lecture number 13, 23rd December. हम स्टार्ट करेंगे आज a new domain completely where we'll be applying whatever we have learned. So therefore this will be called as application of applied thermodynamics. Let us apply whatever we have learned to real systems. अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको अब अप्लाई करेंगे तो अब एप्लीकेशन का टाइम। दिस इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स फॉर यू, बट डेफिनेटली अगर आप इसे देख रहे हैं डायरेक्टली तो आई रिकमेंड कि आप पहले बाकी लेक्चर्स एक बार रिवाइज करें अच्छे से। यू हैव रिकॉर्डिंग अवेलेबल विद यू, so just revise it so that you can actually get more out of whatever I'm going to teach you. So basically इस पार्ट को मैं इसमें हम क्या पढ़ने वाले, ठीक है। Our objective in energy production is always to convert low grade energy to high grade energy, and that is of course a cyclic process. So power producing devices obviously and always they work on power producing. All the power producing devices they work on cyclic process or in a cycle. Similarly, power absorbing also like refrigerator, heat pump, जो हम देख चुके हैं पहले, they also operate in a thermodynamic cycle. So whatever, either it is a power producing device or a power absorbing device, they all are operating on a thermodynamic cycle. Direction is different. One is having a clockwise direction, other is having a anti-clockwise. That simply means that they are opposite in nature. That is, one is absorbing power and another is producing power. For that matter, basically, we are majorly going to discuss thermodynamic cycles. Lot of thermodynamic cycles, at least 10 of them, we are going to discuss, and their application and how to improve them. So, part one would be focused towards power consuming cycles. Yeah, power producing cycles. Sorry, power producing. And part two would be dedicated towards power absorbing cycles. What is the objective इन्हें पढ़ने का? देखिए, हम साइकिल्स जो बनाएंगे और जो हमने लॉस समझे हैं उसकी मदद से हम इनकी एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करोगे सर पेपर पर बैठ? तो ऐसा है, देखिए थ्योरेटिकली जो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे ना आज कि ऐसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो हो सकता है कि आप कह दो यहाँ बैठे बैठे 20% एफिशिएंसी बढ़ेगी, रियलिटी में वो 15% बढ़े। बट quantitatively you might not be correct, but qualitatively you will be correct. That is why we do such kind of analysis.
स्टूडेंट्स की हमेशा कंप्लेंट होती है सर हम थ्योरी में जो भी पढ़ते हैं वो कभी भी काम नहीं आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आप थ्योरी पढ़ते हो उससे आपका एप्टीट्यूड डेवलप होता है। वंस योर एप्टीट्यूड इज डेवलप, अगर आपने थ्योरी सही से पढ़ी है तो उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करोगे उस एप्टीट्यूड, तो यू विल डेफिनेटली यू कैन डू। So to improve performance is basically our main ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए पहले उन्हें समझना पड़ेगा, उनका एनालिसिस करना पड़ेगा, देन वी विल टॉक अबाउट। इसमें कुछ अगर क्लासिफिकेशन देखें हम, so the first one would be a cycle where the fluid is always in a liquid state. Sorry, fluid is always in a gaseous state. उसे हम कहेंगे गैस पावर। We call it as a gas power. Just a minute. और दूसरा जिसमें बेसिकली दो फेज होते हैं, तो वी कॉल इट एज वेपर पावर। मतलब वेपर पावर साइकिल जो होंगी ना, इसमें लिक्विड प्लस उसका वेपर दोनों होगा, और गैस पावर साइकिल में सिर्फ वेपर ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल्स की। तो पावर एब्जॉर्बिंग में भी मैं सेम क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन करूंगा। एक तो गैस पावर साइकिल, और दूसरा गैस पावर नहीं बोलेंगे उसको, फिर वहां पर यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हो कि यू कैन कॉल सम विद सम अदर नेम, बट प्रिंसिपल रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन साइकिल। जहां पर आप क्या करोगे, जहां पर आपका लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होगा, और एक होगा आपका जहां पर प्योरली गैस है, लिक्विड प्लस वेपर। यहाँ पर गैस के लिए जी यूज करते हैं। गैस और वेपर भी गैस ही होती है। लिक्विड को जब आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करोगे तो दैट वुड आल्सो बी अ वेपर, और इट इज अ गैसियस स्टेट। हाँ, अब अगर हम आगे चीजों को समझने की कोशिश करें कि सर ये क्यों गैस है, क्यों लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया जा रहा है, एक फेज में क्यों नहीं रखते हैं, फेज कन्वर्जन क्यों करना पड़ रहा है हमें, ये बात समझना स्टेट पे बहुत जरूरी है। तो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी नाउ द रिवर्सिबल वर्क डन इन एन ओपन सिस्टम। ये एक डेरिवेशन हम पहले से करेंगे। रिवर्सिबल वर्क, रिवर्सिबल वर्क। वीडियो ऑफ। तो रिवर्सिबल वर्क इन steady flow system, this is what we are going to study, मतलब this time। चलो, तो क्या होता है फॉर्मूला? सर फॉर्मूला होता है Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा K प्लस डेल्टा P
let us write it in the differential dq minus d equal to dh plus d kinetic energy. Kinetic energy को कैसे लिख सकते हो vdv और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिख सकते हो आप gd वेरी सिंपल. नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर बात तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए dq जो होगा वो tds के बराबर. फॉर रिवर्सिबल के लिए आई कैन राइट दिस. So let us write it like this. TDS equal to dW plus DH plus VD plus GD. Or TDS equal to DH minus. This is a well-known relation we already. चलिए इसको सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा मैथमेटिकल है ये बट इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस जो होने वाला है बहुत ज्यादा. तो VDP से DH से DH कैंसिल आउट होता है. और अगर हम चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी neglecting changes in kinetic energy and potential energy with respect to other changes, with respect to changes in other forms, with respect to changes in other forms. Then I can write dW equal to minus. और ऐसा करने में कोई बुरा ही नहीं क्योंकि ऐसा होता है. मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इतने चेंजेस नहीं होते हैं सिस्टम में जितना बाकी दूसरे फॉर्म में. अगर मुझे इसे लिखना है तो हमें इस फॉर्मूले को फिजिकली इंटरप्रेट. लेट अस इंटरप्रेट दिस बट बिफोर दैट लेट अस राइट दैट ये किस केस में ट्रू है. एक तो आपने स्टेडी फ्लो एंड रिवर्सिबल वर्क and apart from that the changes in kinetic energy and potential energy. Now, let us understand physics of this equation. Physics behind ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ध्यान रखिए बहुत आसान है. देखिए डीपी का मतलब क्या है. इसको थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं तो मान लेते हैं ये कांस्टेंट डेल्टा ऐसा लिखते हैं रफली. सिर्फ हम एनालिसिस समझने के लिए कर रहे हैं. डीपी मतलब चेंज इन पोजीशन. चेंज इन और वी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम. अब फॉर सेम डेल्टा पी लेट्स कंपेयर वर्क रिक्वायर्ड टू compress या to increase. Rather, the correct word would be to increase pressure for liquid जैसे कि water and इसी का gaseous ले लेते हैं steam. अगर हम कंपेयर करें सेम डेल्टा पी के लिए स्टीम है यहाँ पर और यहाँ पर है आपके पास
अब सेम डेल्टा पी अगर आपने स्टीम और वाटर के साथ क्रिएट किया है तो वर्क किसमें ज्यादा करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन। तो वर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा उसमें जिसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी कम। डेंसिटी किसकी कम, स्टीम की डेंसिटी लो, सब जानते हैं, और स्पेसिफिक वॉल्यूम, और वाटर की डेंसिटी हाई, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन। तो अगर आप स्टीम का प्रेशर राइज करोगे तो आपको वर्क जो करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो स्टीम के साथ वर्क करना पड़ेगा बहुत ज्यादा ऐसा। तो हम करते क्या है, हम इसका फायदा उठाते हैं। हम अच्छा, इसका रिवर्स भी ट्रू है। इसका रिवर्स भी तो ट्रू है कि अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे, इफ यू डिक्रीज द प्रेशर, if you decrease the pressure, then we will obtain huge amount of work in case of vapor as compared to will obtain। मतलब ये कि जब आपको वर्क चाहिए, when you want work, तो आप एक काम करें, स्टीम को एक्सपैंड करें ताकि प्रेशर जब ड्रॉप होगा तो आपको बहुत सारा वर्क मिले। बट जब आपको प्रेशर राइज करना हो तब आप स्टीम का प्रेशर राइज ना, आप वाटर का प्रेशर राइज, वाटर का प्रेशर राइज करना बहुत सस्ते में। तो आप दोनों तरफ से मतलब ऐसे फ्लूइड को एक्सपैंड करो आप जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत हाई हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्क मिले, और ऐसे फ्लूइड को आप कंप्रेस करो या कंप्रेस नहीं करो, उसका प्रेशर राइज करो जिसको आप जिसका टेम्परेचर जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत लो हो ताकि आपको बहुत कम वर्क करना पड़े। तो आप ऐसा करोगे तो आपको देना कम पड़ेगा और मिलेगा कम। तो नेट जो आउटपुट होगा वो बहुत हाई। दैट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस काइंड ऑफ सिस्टम। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब लिक्विड में कब रहेगा वो, जब आपको प्रेशर राइज करना, और वेपर में कब रहेगा वो, जब आपको ड्रॉप, जब आपको एक्सपेंशन। तो ये वाली स्टेट जब होती है इसमें हम प्रेशर राइज ही करते हैं, और ये वाली जो स्टेट होती है इसमें हम प्रेशर ड्रॉप करते हैं ताकि हमें ज्यादा मिले। ड्रॉप करने पे प्रेशर ज्यादा वर्क मिलेगा और राइज करने पर कम करना, क्योंकि ड्रॉप हमेशा प्रेशर जब भी होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा मतलब आपको मिल रहा है, तो वो ड्रॉप करने में आपको बहुत वर्क मिल रहा है क्योंकि आप स्पेसिफिक वॉल्यूम हाई के साथ ड्रॉप करा रहे हैं, और राइज करने में हमेशा आपको वर्क देना पड़ेगा। तो आप देने के टाइम पर आप क्या कर रहे हो, आप जब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वर्क दे रहे हो कि आपको पता है अगर आप लिक्विड का प्रेशर राइज करोगे तो आसानी से हो जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा वर्क नहीं करना। इसलिए लिक्विड और वेपर दो अलग अलग स्टेट में करते हैं। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। तो एडवांटेज ये हो गया कि जब आपको वर्क मिल रहा है, वर्क मिलता है टरबाइन से, और जो आपको वर्क देना है वो पंप, तो डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी नेट इज वेरी हाई। मतलब ऐसा लिख दो, बस ये बात।
बट आपको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, लिक्विड टू कर वेपर कन्वर्जन एंड वेपर टू लिक्विड, ये बार बार करना। तो दिस विल मेक योर सिस्टम बल्कि। इस सिस्टम को काफी बल्कि बना देगा। अब बल्कि होने से क्या हो जाएगा? अब बल्कि होने से ये हो जाएगा कि पूरे सिस्टम का जो वेट है, ये मास है, वेट बोल लीजिए, मास बोल लीजिए, और पावर है, वो रेशियो थोड़ा लो है, और द लोअर रेंज। दो एफिशिएंसी विल बी बेटर। उसी जगह अगर आप सिर्फ गैस गैस करते तो वेट कम हो जाता, इसलिए पावर टू वेट रेशियो आपका इंप्रूव हो जाता। बट वहां पर चूंकि आप प्रेशर भी उसी का राइज कर रहे हो जिसका आपको जो गैसियस स्टेट में है, और मतलब आई मीन टू से दैट कि आप प्रेशर भी गैसियस स्टेट में ही ड्रॉप कर रहे हो और वर्क भी गैसियस स्टेट से ही ले। दोनों के स्पेसिफिक वॉल्यूम में थोड़ा बहुत अंतर होगा, इसलिए आपको नेट वर्क जरूर मिलेगा, बट इतना नहीं मिलेगा जितना यार। तो गैस साइकिल्स जो होती है that overcomes the weight issue by not converting or by maintaining same fluid in system. ठीक है। तो इस तरह के वेट इशू आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में आपको अगर पावर प्रोडक्शन चाहिए, जैसे कि एयरक्राफ्ट, you will definitely opt for gas power cycle. Always a better choice. Why? Why it's a better choice? Simply because you have you might get good efficiency. देखो क्या होगा, अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, आपको वेट को भी साथ में कैरी करना है, तो चाहे वो स्टैटिक कंडीशन में ज्यादा वो पावर प्रोड्यूस कर ले, बट जब उसको खुद को भी उठा के ले जाना है अपने आप को, तो दैट विल ऑल्सो गिव इट अ लॉट ऑफ कॉस्ट। तो मोशन में वो हो सकता है एफिशिएंट ना हो, स्टैटिक कंडीशन में वो ज्यादा एफिशिएंट। प्लेन में हम हमेशा चाहेंगे, एरोप्लेन है जैसे कि वहां पर तो वैसे भी वेट का इशू बहुत सीवियर होता है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर हम इस तरह के कन्वर्जन नहीं करेंगे, 2 5 10% 20% एफिशिएंसी बचाने, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ऐसे सिस्टम को उठाकर ले गए कहीं उड़ाकर, तो वो अपने आप को भी कैरी करने में एनर्जी खा जाएगा जो वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाई टू अननेसेसरली इंक्रीज द साइज एंड द वेट ऑफ द सिस्टम। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, और इसलिए दोनों को पढ़ा जाता है। कोई किसी से कम नहीं है, सबका अपना अपना एक वजूद है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो अब आपको जब स्टैटिकली पावर प्रोडक्शन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पावर प्रोडक्शन करना है थर्मल पावर प्लांट, तो वो लिक्विड प्लस वेपर पे ऑपरेट होते हैं, वहां पर स्टीम बनती है, और उसके सपोर्ट के लिए कभी पीक मीट करना हो तो फिर गैस भी लगा हुआ होता है। बट ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको चाहिए तो वहां पे सिर्फ गैस ही, तो गैस दोनों जगह कहीं ना कहीं हेल्प करता है। गैस ट्रांसपोर्टेशन में तो हेल्प करता ही करता है, बट एज अ ऑक्सिलरी यूनिट
पावर प्लांट्स में भी लगा हुआ होता है। उसको स्टार्ट करना आसान होता है, सिस्टम सिंपल है ना, तो उसको स्टार्ट करना भी सिंपल होता है। और पीक में अगर डिमांड मीट करनी हो तो भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से खूबसूरती से यूज। So that's the whole लॉजिक ओवर हियर। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन लिक्विड प्लस वेपर्स। लेट्स स्टार्ट विद लिक्विड प्लस वेपर। यहाँ पे ये चीज तो क्लैरिटी आ गई है हमें कि कौन सी साइकिल का क्या इम्पोर्टेंट। So first we will be starting with vapor power cycle. So this would be our chapter number 1. मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से। Let's start with chapter number 1 in this vapor power. So what basically we are going to do over here is that there will be a turbine. Will be producing power with this turbine. Right? And there is an entry of a steam over here, and there is an exit of steam. अब कंटिन्यूसली स्टीम फीड करनी है मुझे तो स्टीम जनरेट भी करना होगी और स्टीम जनरेट करने के लिए we use basically a device known as boiler. This is what it is. Many times boilers are shown like this in textbooks. So this is a boiler. So boiler पे एंट्री में आएगा वाटर, प्रेशराइज, क्योंकि हम वाटर का प्रेशर राइज करेंगे और फिर ये बेवकूफी नहीं करेंगे कि मतलब समझिए हमने पानी में उसका प्रेशर राइज कर दिया, वाटर स्टेट लिक्विड स्टेट में उसका प्रेशर राइज कर दिया, कैसे फॉर्मूला यहाँ पर भी वाटर आया था जिसका प्रेशर लो प्रेशर, लो प्रेशर लाइन को मैं काम करता हूँ ग्रीन से जोड़ता हूँ। लो प्रेशर आया, इसको आपने हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने लिक्विड स्टेट में किया है तो इट वोंट कॉस्ट यू मच। अब ये प्रेशराइज हो चुका है, अब इस प्रेशराइज वाटर को सेम प्रेशर पे मेंटेन करा, अब प्रेशर चेंज नहीं करूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं रेड लाइन से हाई प्रेशर शो कर रहा हूँ तो बॉयलर से भी वही रेड लाइन पे प्रेशर निकलेगा, थोड़ा बहुत माइनर 1-2-5% लॉस हो जाएगा फ्रिक्शन विक्शन के कारण। बट अगर यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 बार है और यहाँ 50 बार है तो थ्रू आउट हीटिंग जितनी भी होगी आपकी वो कांस्टेंट प्रेशर पर हीटिंग प्रोसेस, आप हीट सप्लाई करोगे ना बॉयलर को, हीटिंग प्रोसेस। अब हीटिंग कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे आप विजुअलाइज करोगे, क्यों होगी कांस्टेंट प्रेशर? बॉयलर के अंदर क्या होती है, ट्यूब्स होती है। किसी भी एक ट्यूब में देखो, आप फ्लो को एनालाइज करो, वाटर इज फ्लोइंग और फ्लूइड इज फ्लोइंग, आप हीट सप्लाई करो।
So what actually is happening is then when fluid is flowing over here, we are supplying some heat to it, और ये heat addition process जो है, this is absolutely can be assumed as a constant pressure constant pressure. अभी कांस्टेंट प्रेशर पे फ्लो कैसे आप इसको कांस्टेंट प्रेशर पे तो फ्रिक्शन के कारण मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत लॉसेस होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर चेंजिंग फेज में लिक्विड से वाटर में कन्वर्ट वाटर टू वेपर कन्वर्जन होता है. You all know that it occurs at a constant temperature and constant pressure. फेज चेंज के प्रोसेसेस यूजुअली कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर. अब यहाँ पर आपने जो हीट सप्लाई करी उससे प्रेशर नहीं बढ़ेगा, उससे बेसिकली इंटरनल एनर्जी, ये मैं आपको टीएस डायग्राम में दिखाऊंगा. फिर क्या होगा, अब ये वापस से स्टीम यहाँ पर एक्सपैंड होगा. अब एक्सपैंड कौन हो रहा है, ड्रॉप कौन हो रहा है, प्रेशर किसका ड्रॉप हो रहा है, हाई प्रेशर स्टीम का. तो आपको क्या मिलेगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ. और यहाँ पर फिर आपकी ये हाई लो प्रेशर स्टीम चलेगी. अब इस लो प्रेशर स्टीम को आप क्या में कन्वर्ट करोगे, इसको वाटर में कन्वर्ट करोगे. क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको प्रेशराइज कर दिया लो प्रेशर स्टीम को, तो आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना आपने शायद मिलाया. तो बेसिकली यू विल गेन नथिंग आउट ऑफ दिस सिस्टम. इसको कन्वर्ट कर लो, ज्यादा समझ. कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कन्वर्टिंग डिवाइस लगाया जाएगा जो सराउंडिंग को हीट सप्लाई करे. इसके पास अभी भी थर्मल एनर्जी, जब अपनी थर्मल एनर्जी रिलीज कर देगा तब जाके तो ये लिक्विड टू वाटर टू सॉरी स्टीम टू लिक्विड कन्वर्ट होगा. ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कंडेंसर. यहाँ पे कंडेंसेशन, यहाँ पे लो प्रेशर वाटर because it will release its energy. ये एक लो ग्रेड एनर्जी है और लो ग्रेड एनर्जी भी लो टेम्परेचर पे अवेलेबल है, तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है. You might be get tempted sir कि यहाँ से हमें कुछ एनर्जी मिल रही है, but just let me remind you that this is not be having sufficient available energy so that we can use work for important. इसको हम surrounding में discuss करते हैं. Maybe it can be used for some heating purpose or from other purposes, but इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं. Now let us examine this process on DS diagram in PV. उससे पहले मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ. Let us say that this is number 1. This is number 2. This is number 3. This is number. अगेन ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस जो होगा ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे होगा. तो ये दोनों प्रोसेस कांस्टेंट प्रोसेस और ये एक्सपेंशन है. बेस्ट प्रोसेस फॉर एक्सपेंशन over here for a turbine solution can be thought of as an isotope. इसमें एंट्रोपी में चेंज सिस्टम का it's a reversible and adiabatic. That's what I'm saying. इस पे भी आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा. Let us draw PV diagram.
ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गैस जो होता है वाटर का वो इस तरह से होता है और ये दो प्रेशर लाइंस के बीच में ऑपरेट ये सिस्टम 1 से 2 एक्सपैंड हो रहा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है ना और 1 पे जो है वो स्टीम दिस इज योर स्टीम एक्सपेंशन आपने कैसा माना है आपने एक्सपेंशन माना है आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एंड आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए मैं इसे प्लॉट कर सकता हूँ ये तो प्लॉट नहीं रिवर्सिबल तो मानना ही पड़ेगा और हम हमेशा चाहेंगे कि कुछ भी एनर्जी बाहर लॉस ना हो इसकी एरिया जरूरी है क्योंकि रिवर्सिबल मानोगे नहीं तो फास्ट प्लॉट नहीं कर पाओगे 1 2 इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम विल इंक्रीज मतलब डेंसिटी थोड़ी कम लोकल फिर ये 2 2 3 कन्वर्ट होगा वाटर ये वाटर बन के यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड है तो इसके बाद हम इसे लिक्विड स्टेट 3 to 4 पंप करें इस प्रेशर पर वापस होगा टीएस डायग्राम कैसे टीएस डायग्राम के लिए आपको टीएस कर बनाओ टीएस धूम बनाओ फिर टू कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यहाँ बनाना काफी आसान है कांस्टेंट प्रेशर with the constant temperature also will be phase 3 to 4 pressurized क्या isentropic 4 to 1 is a heat addition this is a heat addition all right friends now there can be one more version of it कि आप इसे हीट करके सुपर हीटेड स्टेट उस केस में ये आपका साइकिल जो है यहाँ तो बोथ द साइकिल्स आर मतलब यहाँ से अगर आप देखो इसको सुपर हीटेड लेके मतलब और अब इस केस में हीट सप्लाई आता है तो one can be a superheated state or one can be a saturated vapor state. Both the things are possible. Now, this is known as PV, which is known as boiler pressure. PC would be condensate.
Now we will be doing first law analysis. भैया कैसे हम efficiency calculate कर सकते हैं. So we'll apply first law to it, and just for your information, this is known as Rankine's. Rankine. We call it as a. We'll take just a 2 minute break, then we can start. Okay. So now let us do some simple analysis. First, we'll do first law analysis of first law applied to Rankine set. तो पहला पॉइंट ये होगा कि all the components are assumed to be in open system. Open system से मतलब ये हुआ कि mass is coming in and mass is going out, and they are open system. I think I must ये word हटा देना चाहिए. All the components are in open system. Are open system. In open system. सब में mass आ रहा है mass. But हाँ ये assumption सही है कि they are all in steady state. They are all in steady.
एक assumption हम ये और लेंगे यहाँ पर कि changes in kinetic energy and potential energy are, तो रैंकाइन साइकिल हमने बनाई है यहाँ पर, और रैंकाइन साइकिल हमने अज्यूम की है कि बेसिकली टू आइसोबार्स एंड टू आइसेंट्रोपिक। अज्यूम भी क्या है, इस तरह से डिफाइन किया है। लेट्स स्टार्ट विद प्रोसेस Q minus W is equals to delta H plus delta KE plus delta P. This is the first law, and this is the steady flow energy equation, which is the first law representation of it. यहाँ पर अगर आप देखा कि हमने डेल्टा P और डेल्टा KE क्या करा, क्योंकि ये चेंजेस नेग्लिजिबल है डेल्टा H के चेंजेस, और एडियाबैटिक है आपका 1 to 2 प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक, तो माइनस W इक्वल टू 1 2 की बात है डेल्टा H. What is delta H? Final minus initial. So final is 2, initial is 1. So W12 would be equal to H1 minus. मतलब इस पॉइंट पे एंथैल्पी और इस पॉइंट पे एंथैल्पी अगर आपने निकाल ली तो आपको टरबाइन वर्क मिलता है, और ये एंथैल्पी निकालना हम सीख चुके हैं कैसे स्टीम टेबल हमने पढ़ना सीखी, और भी हम डेफिनेटली अभी सॉल्व करेंगे, तो सीख और जो हमने सीखा है उसको और हम शार्पन करेंगे। प्रोसेस 2 again I use steady flow energy equation. Again and again I'll be using the same steady flow energy equation because all the components are open, are having a mass in and mass. अब कंडेंसर में तो हीट रिजेक्ट हो रही, नहीं तो कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो रही, कंडेंसर वर्क तो कर नहीं रहा, कंडेंसर में वर्क आप कर लो, हीट कितनी है रिजेक्टेड, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको तो क्यू आर लिख दो, डेल्टा एच लिख दो, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, अच्छा हीट रिजेक्ट हो रही है तो माइनस आएगा, ये बात नहीं, तब जाके आपकी वैल्यू सही होगी, फाइनल इज H3 हीट रिजेक्टेड विल बी H2, इस पॉइंट पे एंथैल्पी और इस पॉइंट, this is how you can write laws for different processes. चलिए 3 to 4 में चलते हैं, 3 to 4 में इंटरेस्टिंग बता रहा है। अगर मैं प्रोसेस 3 to 4 की बात करूं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो H3 माइनस सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा K प्लस डेल्टा, Q पंप को एडियाबैटिक रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक है, पंप पे हम वर्क कर रहे हैं तो हम दे रहे हैं वर्क, तो ये माइनस आएगा डेल्टा H फाइनल माइनस इनिशियल H4 माइनस पंप वर्क आ जाएगा आपका H4, H3 तो बड़ा आसानी से निकाल लूंगा, ये तो स्टीम टेबल से स्ट्रेट अवे रीड, H4 कैसे निकाल, पंप वर्क क्या होता है माइनस VdP, और अगर हम प्रोसेस 3-4 की बात करें, प्रोसेस 3 वी आर डीलिंग विथ
लिक्विड वाटर, जिसका प्रेशर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये दिख भी रहा है अगर आपको यहाँ पर चेंज अगर कुछ करता हूं तो ये नेग्लिजिबल, दिस इज, इससे भी मैं कम कहूंगा कि दिस इज नेग्लिजिबल। Therefore, V is equals to constant throughout process. तो मैं यहां पर अगर पंप वर्क निकालना चाहता हूं, ये माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब क्या है? डेल्टा बी अगर देखो इसको मैं बाहर निकाल के डेल्टा पी डीपी क्या लिख सकता हूँ? डीपी लिख सकता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल, बॉयलर प्रेशर माइनस प्रेशर कंडेंसर। अगर मुझे प्रेशर राइज करना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट इट मींस माइनस। माइनस का मतलब, और अगर मुझे प्रेशर, मैं प्रेशर रिलीज कर दूंगा मतलब पीसी माइनस पीपी होगा। मैं अगर बॉयलर से कंडेंसर प्रेशर की तरफ जाऊंगा तो मेरा ये डेल्टा पी नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स व्हाट इट मींस, दैट्स व्हाट द फिजिक्स ऑफ, so that we already put it over here। तो ये दो बार पुट करने से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली राइट बी पीबी माइनस पीसी, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए बस, इक्वल टू एच फोर माइनस। और ये v कौन सा लोगे? ये v3 निकालना बड़ा आसान है, फोर्थ में दिक्कत आएगी आपको, समझ में आएगा जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। इसलिए फोर्थ पॉइंट की एंथैल्पी आप v3 pb माइनस pc प्लस h3 इस तरह से, क्योंकि 1 की एंथैल्पी निकाल लोगे आप, 2 की एंथैल्पी निकाल लोगे आप, 3 की एंथैल्पी निकाल लोगे, 4 की ही निकाल पाओगे। 4 की एंथैल्पी निकालने का तरीका होता है, और 4 के और पंप वर्क निकालने का भी तरीका होता है। पंप वर्क कैसे निकालिए? ऐसे मत निकालिए, ठीक है? यहां से तो आप H4 निकाल, यहां से H4 निकाल, फ्रॉम दिस गेट द वैल्यू ऑफ H4, okay? H4 भी आ गया आपके पास। अब बात बनती है प्रोसेस 4 प्रोसेस 4 to 1। आप क्या करोगे? Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी, ये जीरो जाएगा। अब 4 to 1 में तो आपने हीट सप्लाई करी है, तो ये हीट सप्लाई हो जाएगा जो कि पॉजिटिव अबाउट दैट जीरो है, और H4 माइनस H1 माइनस H4, H4 माइनस H1 जैसा आपको फाइनल इज 1, इनिशियल इज 4, जैसा आपको लगे जो फाइनल है वो पहले जो इनिशियल, ये क्यूएस आ गया आपका है ना। यहाँ पर H4 निकालने में ना आपको बड़ी तकलीफ आएगी, मैंने बता दिया आपको कि H4 यहाँ से निकालना। इस तरह से आपने देखा कि आपने सारे हीट ट्रांसफर सारे वर्क कैलकुलेट कर लिए फर्स्ट लॉ की मदद से। और हमने ये देखा कि जो प्रोसेसेस हैं बॉयलर और कंडेंसर के अंदर, दे आर अज्यूम टू बी फ्लोइंग इन अ ट्यूब। और अब जब ट्यूब में वो फ्लो हो रहे हैं, इसका सिंपल रीजन है, जब वो ट्यूब में फ्लो हो रहे हैं, सिंपल लॉजिक है,
तो 1 और 2 के बीच में अगर आप देखेंगे तो ना तो वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि पाइप में कॉन्वर्जेंस नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इस कारण से, और वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही और पोटेंशियल हेड भी चेंज नहीं हो रही, समझिएगा। हाँ, 1 और 2 के बीच में बर्नौलीज भी लगा लेंगे। हाँ, वैसे बर्नौली लगा नहीं सकते हो आप क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ लॉसेस भी होंगे, बट अगर आप मोटा मोटे तौर पर देखो जस्ट फीलिंग के लिए, तो 1 और 2 पर वेलोसिटी सेम है ऑलमोस्ट, पोटेंशियल हेड सेम, इसलिए प्रेशर हेड भी ऑलमोस्ट सेम होगा, दो थोड़ा बहुत प्रेशर लॉस होगा फ्रिक्शन, उसके लिए बना नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब एग्जैक्टली बर्नौली नहीं लगा सकते क्योंकि अ पार्ट ऑफ फ्रिक्शन वुड बी लॉस्ट, अ पार्ट ऑफ प्रेशर वुड बी लॉस्ट इन ओवरकमिंग विस्कस फोर्सेस। और सर जब हीट आ रही है वो क्या करेगी, वो हीट तो फेस चेंज कर, प्रेशर चेंज। ओके, यहाँ पर ध्यान रखें, वेलोसिटी एज इट इज है, वेलोसिटी में चेंजेस नहीं है, पोटेंशियल में चेंजेस नहीं है। आप लिखे हो ना Q माइनस, अगर आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा, तो ये तो हमने नेगलेक्ट कर ही दी क्योंकि पाइप का एरिया भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी नोजल तो लगाया नहीं आप, सेम एलिवेशन पर होंगे ऑलमोस्ट, तो प्रेशर चेंज भी जीरो है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वर्क ये करेंगे नहीं तो ये भी जीरो। हाँ, जो हीट सप्लाई करी है वो क्या करेगी, वो एंथैल्पी राइज करेगी, डेल्टा that will be used in increasing the enthalpy, not changing the pressure. और फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस होंगे उसके कारण थोड़ा बहुत प्रेशर ड्रॉप होगा, that can be neglected for current analysis. So pressure drop due to friction is neglected, this will be written as an assumption. So at any time where pressure drops due to friction in pipes is neglected. Due to friction, major losses and minor losses, fluid mechanics में पढ़ेंगे, friction and geometric change. Okay, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ एनालिसिस करने के बाद अगर और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जितने भी हीट एडिशन और हीट लॉस प्रोसेस होंगे पाइप्स के अंदर, कंडेंसर ओपन सिस्टम के अंदर, वो सारे कांस्टेंट प्रेशर पे ही। कुछ ना कुछ तो प्रोसेस बनाना पड़ेगा ना आपको, तो वो बेस्ट सूट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर। We have over here a concept of mean temperature of heat addition
एक जनरल प्रोसेस। और ये आपका टीएस है। Let us say this is your attempt. 1 2 3. यहाँ पर हीट एडिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हीट एडिशन 4 to 1. So heat addition is between 4 to 1. अब जब 4 to 1 हीट एडिशन हो रहा है तो क्या ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है कि वेरिएबल टेम्परेचर? सर ये तो वेरिएबल टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर T4 है और यहाँ पर टेम्परेचर T1। टेम्परेचर हैज नॉट बीन रिमेन कांस्टेंट। क्या मैं एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर डिफाइन कर सकता हूँ जिस पे उतनी ही हीट ट्रांसफर हो जितनी 4 to 1? मतलब ये कि आप जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द हीट सप्लाई और रिजेक्ट। अगर आप यहां देखेंगे दिस एरिया रिप्रेजेंट्स हीट सप्लाई। अब मैं एक ऐसा टेम्परेचर डिफाइन करूं सेम दो पॉइंट्स के बीच, which is denoted by, let's say for example, A, B, C. तो एरिया ए बी सी डी, मैं इनको अगर और थोड़ा सा बड़ा लिखूं तो A B 2 C D 3 4 A B 2 C D 3 4 This is equal to area yellow yellow अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, देखो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, जिसको मैं अभी यहाँ से ऐसे दिख रहा हूँ, ये ट्राइंगल एक एक्स्ट्रा एरिया अगर आप दोनों एरिया को, और ये जो व्हाइट रीजन दिख रहा है ये एक्चुअली में येलो के पास ज्यादा है और ये येलो के पास नहीं। तो बेसिकली ये व्हाइट रीजन और ये रीजन ये सेम हो तब जाकर ये इक्वली। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एरिया AB 2 3 है, ये जो कि सिंपल सा रेक्टेंगल है। ये है आपका टीएम, जो कि हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर पे हम क्या यूज कर रहे हैं कि सारी की सारी हीट इसी टेम्परेचर पर ट्रांसफर, वेरिएबल पे नहीं। बट ध्यान रखें हीट सेम ट्रांसफर, तभी फिजिक्स खराब नहीं होती। और दिस कैन बी कॉल्ड एज, यहाँ पर 1 पॉइंट है तो ये S1 हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज S1 and this distance is S2, S1 minus S2 equal to this.
What is QS? QS right now we have calculated H1 minus H2. This can be called as H1 minus. So mean temperature of heat addition can be defined as H1 minus H4 upon S1. अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहा कि 1 4 से 1 जो आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है वो ऑल दो वेरिएबल टेम्परेचर पर हो रही है, बट अगर आप उसे अज्यूम कर सकते हो कि वो पूरी की पूरी टीएम पे हो, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि अगर आगे चल के एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करूं, चलिए एफिशिएंसी निकाल। एफिशिएंसी क्या लिखोगे? 1 माइनस हीट सप्लाइड, सॉरी हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। हीट रिजेक्टेड क्या है दोस्तों? हीट रिजेक्टेड है इसकी हीट रिजेक्टेड है ये यहाँ पर हीट रिजेक्टेड। तो हीट रिजेक्टेड आप लिख सकते हो बेसिकली, अब ये हीट भी किसी ना किसी टेम्परेचर पर रिजेक्ट हो रही है, तो इसको मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कह लो। यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ मीन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन हो गया, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। तो हीट जो है वो वेरिएबल टेम्परेचर पर ऐड हुई है, इसलिए टीएमए और टी1 टी4 में डिफरेंस है। बेसिकली टीएमए इन सारे 1 से लेकर 4 के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में, जिसमें हीट ट्रांसफर। और टीएमआर और टी2 टी3 ये सब सेम ही है, तो यू डोंट हैव टू वरी। तो क्यू, सॉरी ये क्यू आर होगा, दिस इज रिजेक्टेड, दिस इज क्यू आर। हीट रिजेक्ट कितनी हुई है? S1 माइनस S2 इंटू टी, S1 माइनस S2 इंटू टी। और सप्लाइड कितनी है? सप्लाइड है सप्लाइड आप लिख सकते हो टीएम S1 माइनस टीएम S1 S1 माइनस S2 तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी आपको 1 माइनस टीएम। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं होती है। मतलब ये आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है ना, तो आप हीट टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज दी एफिशिएंसी। हमको इंक्रीज तो करनी है एफिशिएंसी, यही तो चाहते हैं कि हम कैसे इंक्रीज करें। तो बस हो गया, उसका जवाब हो गया आपको। अब तो बस मुझे आपको बताना है कि डी कैसे बनाना है। तो इंक्रीज दी एफिशिएंसी क्या करें? इंक्रीज दी टेम्परेचर ऑफ हीट कैसे इंक्रीज होगा? ये क्वांटिटी पूरी ओके। अब सर ऐसे तो टीएमआर कम करने से भी हो जाएगा, टीएमआर भी कम कर दो, बट टीएमआर कम करना डिक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज टीएमए एंड डिक्रीज। टीएमआर कैसे डिक्रीज?
ये मैं डिक्रीज करना मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। वैसे बताऊंगा मैं आपको TMR के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर किया जा सकता है, बट ऑल टुगेदर हमारा पूरा फोकस जो रहेगा वो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ाना है। अब कैसे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हम बढ़ा सकते हैं वो समझने से पहले अब आप ये समझिए कि कार्नोट वाज आल्सो रिवर्सिबल साइकिल, दिस इज आल्सो रिवर्सिबल साइकिल, बट व्हाट मेक्स कार्नोट मोर सुपीरियर देन नाउ लेट अस कंपेयर both of them. So comparison of mankind and Carnot. चलिए दोनों को एक पेज पे बना एक साथ। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, रैंकाइन बना लेते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। टीएस प्लॉट पे कंपेयर करना बना था। अच्छा वन यहाँ से लिया है हमने, सॉरी, 1 2 3 और कर्नाटक कर्नाटक लेट से मैं ऑरेंज कलर से बनाता हूँ बिटवीन द सेम टू सब कुछ सेम, बस यहाँ पर 4 डैश पॉइंट चेंज हो गया है। तो ग्रीन वाला आपका रैंकाइन है 1 2 3 4, और 1 2 3 4 डैश आपका कर्नाटक। ये आपका टी लोअर है, ये आपका टी हाई। एफिशिएंसी क्या होगी कार्नोट की? एफिशिएंसी सर कार्नोट की होगी 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर होती, बट हीट सप्लाइड अपॉन हीट रिजेक्टेड तो सभी के लिए होता है हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। तो चलिए देख लेते हैं हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्ट कितनी? टी लोअर इंटू S2 माइनस S3 अपॉन टी हायर इंटू S1 माइनस S4। S2 माइनस S3 और S1 माइनस S4 डैश सेम, इसलिए ये टर्म 1 माइनस टी लोअर अपॉन ये कार्नोट है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन सेकंड ऑफ। अब यहाँ रैंकाइन की अगर मैं बात करूँ आप लोग से, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड तो गई 1 माइनस। अब यहाँ पर जो सुपीरियरिटी है कार्नोट की वो ये है कि सारी की सारी हीट जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर पर सप्लाई है। यहाँ पर अब फ्रैक्शन ऑफ हीट इज नॉट सप्लाइड एट अ हायर टेम्परेचर, और हम जानते हैं कि जब हीट हायर टेम्परेचर पर सप्लाई होती है तो उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, बट यहाँ पर जो हीट सप्लाइड है वो एक लोअर टेम्परेचर पर, कुछ पार्ट लोअर टेम्परेचर पर भी सप्लाई हुआ है। इसका जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन होगा वो ये होगा टी। हम जानते हैं कि यहाँ का फॉर्मूला बनेगा टी एम है, सॉरी टी लोअर, नीचे वाली तो पूरी लोअर पर रिजेक्ट हुई है, बट ये जस्ट नाउ यूज, एंड टीएमए इज ऑलवेज लेस देन टी। व्हाई? टीएमए इज ऑलवेज लेस देन टी। उसके पीछे कोई पर्टिकुलर
कार्नोट में पूरी की पूरी हीट जो ट्रांसफर हुई है वो एक हायर टेम्परेचर, रैंकाइन में वही हीट लोअर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई. For that simple reason, this would be your reason, and this would be a reason for T Carnot to be more than T. तो सर रैंकाइन को हम ऐसे क्यों चला रहे हैं, 4 डैश तक ले जाओ, रैंकाइन को भी ऐसे ही बनाओ ना. ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों? देखो यार, 4 डैश की प्रेशर लाइन, 4 डैश की प्रेशर लाइन. आप क्या चाह रहे हो कि उसको आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर, आप सुनना आपका जाना, लिक्विड का टेम्परेचर आप प्रेशर से राइज करके चेंज करना. क्योंकि जो करंट प्रोसेस है ना मेरा 3 to 4 वाला, उसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना वो बहुत ही कम होगा, चाहे प्रेशर में इंक्रीज बॉयलर तक पहुंचे. ये बॉयलर प्रेशर है आपका ही कंडेंसर. आप इतना ज्यादा टेम्परेचर राइज फ्लूइड का, लिक्विड का प्रेशर राइज करके करिए, कर भी लोगे तो बहुत ज्यादा इतना प्रेशर राइज करना पड़ता है आपको कि आपको बहुत ही ज्यादा लगा. तो ये प्रैक्टिकल इस कारण से हम थोड़ा पहले ही, जहाँ तक मैं मतलब अभी से जहाँ तक हमें प्रेशराइज करना है अभी तक करते हैं, अननेसेसरली हायर प्रेशर तक इसे, क्योंकि हम टेम्परेचर अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम वो हीट सप्लाई करके करते हैं rather than increasing the pressure and expanding the heat. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हमेशा करना होता है. ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं. मुझे 2 to 5 मिनट कंप्लीट कीजिए.
चलिए आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को बात। तो ठीक है सर, रैंकाइन ही यूज करेंगे क्योंकि कार्नोट को प्रैक्टिकली प्रेशराइज करना 3 से 4 तक, और टेम्परेचर भी राइज करना, उतना ही टेम्परेचर राइज करना, मतलब इस टेम्परेचर के इक्विवेलेंट प्रेशर राइज करना, ये जो डेल्टा पी है बहुत लार्ज होता है, बहुत लार्ज होता है। मतलब पानी का टेम्परेचर राइज करना, प्रेशर चेंज करना, ताकि जो भी हीट दो वो सब हाई टेम्परेचर पर ही दे पाओ। जो एफिशिएंट है वो, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ना हम एक बात तो समझ गए हैं कि जो भी है सर, इसको बढ़ाओ, टीएमए को बढ़ाओ, जितना टीएमए को बढ़ाओगे आप उतना हम कार्नोट की तरफ पहुंचेंगे। बट बाय सब कार्नोट नहीं बनना है हमें, बट हमें कार्नोट से हमें टीएमए को बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो एक तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चल तो देखते हैं। So the very first point I'd like to mention over here is effect of condenser pressure on performance of, या on, चलिए इफेक्ट ऑफ कंडेंसर प्रेशर करते हैं। बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट दिखेंगे तो उसको लिखकर हम एक बात तो आप समझते हैं कि कंडेंसर का प्रेशर लेट से कितना रहा, चलिए आर्बिट्री वैल्यू चूज करते हैं मन से कि देखो एक बात समझना था कि कंडेंसर को करना है, पहले ये भी समझो कंडेंसर को हीट रिजेक्ट करना है सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री, तो कंडेंसर का प्रेशर 40 डिग्री तो होना चाहिए, 40 डिग्री तो होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो कंडेंसर का प्रेशर सर एक काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं, देखते हैं कि रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अरे अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप स्टीम टेबल देखोगे, सैचुरेटेड स्टीम, तो टेम्परेचर बेस्ड है, हम प्रेशर बेस्ड है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखते हैं प्रेशर। अच्छा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1.01325 इंटू 10 to the 5 पावर 5 बार, और अगर आपको इसे मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 0.1 मेगा पास्कल टू दी इनवर्स, ये हमने देखा। 0.1 मतलब 99.6। तो ये 0.1 मतलब 0.1 मेगा पास्कल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है इसके करस्पॉन्डिंग, अगर आप इसे टीएस में देखना चाहो, अगर ये मैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन कहूँ P इक्वल टू 180 एमपी है, तो टीएस प्लॉट पर ये जो चीज है हमारी, ये टेम्परेचर क्वांटिटी, दिस इज कमिंग आउट टू बी समवेयर अराउंड 90, सराउंडिंग 30 है 40 है। अब इतना ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस है,
क्या मैं देखिए ये आपका जो भी आप एटमॉस्फेरिक जो भी आप कंडेंसर का प्रेशर रखने वाले हो, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट कंडेंसर प्रेशर, दैट प्रेशर विल डिक्टेट योर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। और हमेशा चाहेंगे कि हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन क्या हो आपका, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन डिक्रीज करें। तो हम एक काम कर सकते हैं यार, अगर 30 डिग्री है तो हम इसे 40 डिग्री तक ले जा सकते हैं ना यार, क्योंकि 40 डिग्री तक ले जाओगे आप इसे, मान लीजिए मैं इसे 40 डिग्री तक ले भी गया, तो मेरा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हो जाएगा, रिजेक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट प्रेशर क्या आएगा उससे करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, लोअर प्रेशर ही आएगा, क्या आएगा 40 डिग्री पर, एक चेक जस्ट चेक मार, उसके लिए टेम्परेचर बेस देख लो। 40 डिग्री पर अगर आप देखोगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.007 मेगा पास, 0.007। तो यहां पर आपका प्रेशर 0.007 एमपीए हो जाएगा, और यहां प्रेशर था आपका 0.1, दिस इज टेकन टू बी एटमॉस्फेयर। तो अगर आप कंडेंसर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से नीचे ले जा सकते हो, तो होगा क्या, इसका फायदा क्या मिलेगा, तो आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कम। अब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कम हो जाने से हम दोनों चीजें सोचते हैं, फायदा और नुकसान दोनों में। फायदा क्या हुआ आपका, देखते हैं कि टीएमआर नीचे चला गया, तो टीएमआर नीचे जाने से क्या हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई। कैसे बढ़ी, देखते हैं, कंपेयर, दो प्रेशर लाइन बना, ऊपर एक नीचे, और यहां पर मैं चीजों को कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको हम दोनों केसेस में देखते हैं, एक तो हम इसे इस पॉइंट में तो कांस्टेंट, जस्ट अ सेकंड वेट करिए। दिस इज द हीट सप्लाई,
अगर यहाँ देखेंगे आप तो दिस इज 1, बट अगर आप प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो ये देखिए आपको एक्स्ट्रा वर्क, वी आर गेनिंग एन एक्स्ट्रा वर्क। हीट लॉस दोनों में आप देखें तो एंट्रोपी सेम यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम, हीट रिजेक्शन में इतना फर्क नहीं आया जितना वर्क में। बेसिकली रिड्यूसिंग अ प्रेशर, रिड्यूसिंग द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिड्यूसिंग बाय रिड्यूसिंग मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिड्यूction we can increase, इसलिए जो कंडेंसर होते हैं they are always below atmospheric pressure, मेंटेन करके रखना पड़ता है, always maintain below atmospheric। है ना, तो उसके लिए आपको वैक्यूम पंप यूज करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें एनर्जी जाएगी आपकी, बट वो बहुत ही कम है। उसके अगेंस्ट जो आप गेन करेंगे एफिशिएंसी दैट वुड बी वेरी लार्ज। तो रादर देन हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखें, हम उसे सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखकर इसको नीचे गिराते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस यही है कि इस लाइन को नीचे गिराना और बॉयलर प्रेशर की लाइन को ऊपर गिराना। तो बस कंडेंसर से हो गया इतना। कंडेंसर के दो काम हो गए यहाँ पर, एक तो कंडेंसर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को कम करके रखता है, और दूसरा कंडक्शन कंडेंसर वाटर को या स्टीम को वाटर में करता है। ये कंडेंसर के दो फंक्शन, ठीक है, ये इफेक्ट हुआ कंडेंसर प्रेशर का। दूसरा देखते हैं यहाँ पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बॉयलर। कंडेंसर प्रेशर को मैं सेम रख के बॉयलर प्रेशर देखते हैं व्हाट रिजल्ट्स वी आर गोइंग। इसे फिक्स्ड कर देते हैं। और बॉयलर प्रेशर थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो पहली साइकिल तो आपकी ये रही, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप बॉयलर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, लेट्स से यहाँ है। अब एक चीज ध्यान, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आगे यहाँ पर आपका टेम्परेचर है, इसे थोड़ा ध्यान दें, और यहाँ पर आपका प्रेशर, सॉरी एंट्रोपी। आप कभी भी ध्यान रखिएगा, आप आपके ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर की तलवार हमेशा लगती है, इन द सेंस दैट ये टेम्परेचर कभी भी इससे ज्यादा राइज नहीं कर सकता, चाहे आप किसी भी प्रेशर पर, चाहे आप PB1 पर हो, चाहे आप PB2 पर हो, तो टेम्परेचर तो इन दोनों पॉइंट पे सही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि टरबाइन का मटेरियल अलाउ नहीं करता, टरबाइन की मटेरियल की लिमिटेशन है, टरबाइन मटेरियल वोंट अलाउ यू टू एक्सीड अ टेम्परेचर फॉर सर्टेन पॉइंट। तो यहाँ पर एक आपके पास ये लिमिटेशन है कि दिस इज फिक्स्ड, इसको ध्यान में रखते हुए कि हम चलो मैक्सिमम टेम्परेचर तक जा सकते हैं, एंड दिस इज फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस रैंकिन साइकिल। तो इसके लिए रैंकिन साइकिल आपका ये बना, आप 1 से 2 गए, 2 से आपने रिजेक्शन करा, 2
3 3 so 4 and 4 to 1. फिर लेट्स से कि आप हायर प्रेशर पे काम करते हैं, तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हायर प्रेशर पे काम करेंगे क्रिटिकली। अगर यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स करके आप दोनों एडवांटेज एडवांटेज में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मीन टेम्परेचर और मैंने जो एडिशन हीट एडिशन किया है वो ऐसे किया, और यहाँ पे जो हीट एडिशन किया है वो, तो बॉयलर प्रेशर बढ़ाने से मेरा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज, दैट इज ऑब्वियसली सीन बाय ऑब्जर्वेशन। तो बाय इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर इंक्रीजेस, a good thing happening is, what is a good thing happening? Mean temperature of heat radiation. Therefore, efficiency. But बॉयलर प्रेशर बढ़ाने से एक चीज कम हो रही है, वो है ये एक्स। आप देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू हाई है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू लो है, मतलब एक्स डिक्रीज हो रहा है। एक्स क्या होता है? मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर, ये टोटल मास, मतलब इस लोकेशन पर वेपर का मास कम हो, मतलब लिक्विड का मास इंक्रीज। दिस इज नॉट गुड। व्हाई दिस इज नॉट? लेट अस, so the reason behind it is that कि अगर ऐसा हो रहा है, so the logic behind it is कि ऐसा होना खराब क्यों है, कि अब देखिए यहाँ पर आप लिक्विड और वेपर दोनों को एक्सपैंड कर रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि एक्स की वैल्यू, ऐसा दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, काफी एक्सपीरियंस के साथ ये ऑब्जर्वेशन आया है, the people who have involved in this field, that x less than or x should be greater than point, otherwise क्या होगा? Otherwise it will damage our turbine। टर्बाइन के लिए ये बहुत डेट्रीमेंटल। तो आप एफिशिएंसी तो बढ़ा दोगे, बट टर्बाइन को अगर आप खराब करके एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो नो बडी विल एक्चुअली appreciate your appreciate your suggestion, right? So for that reason, this cannot be, you know, accepted। एक सर्टेन प्रेशर तक तो आप राइज कर लो जहां तक एक्स की वैल्यू 0.85 तक मेंटेन है, बट उसके बाद you have to you know take care of all those things, right? This was the effect of boiler pressure। इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए, या इस इफेक्ट का, आई मीन, कहते हैं ना कि इसे ओवरकम करने के लिए देखिए क्या किया। सिंपल थिंग विच वाज डन वाज, ड्रॉप इट ऑन द bigger side। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न कि दो, एक हो गया आपका बॉयलर प्रेशर और एक हो गया आपका, वी आर व्हाट विल बी डूइंग दिस, जब 1 से 2 आप जाओ, सॉरी ये 3 to 4 पॉइंट, 3 to 4 आप यहाँ से हीट ऐड करना चालू करिए 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 करिए। यहाँ तक जाना है आपको, यहाँ तक, यहाँ तक।
जब आप यहाँ पर आ रहे हो किसी भी एक पॉइंट पर देखें, फिर यहाँ तक तो आपने एक्सपैंड करा 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 और यहाँ, अगर आप नहीं रुकते तो आप यहाँ के लिए, तो आपने क्या करा, इसको वापस से हीटिंग, हीट, जिस प्रेशर पे आप रुके उसे इंटरमीडिएट प्रेशर पे। तो एग्जांपल लिया मैंने, ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, वो ये पॉइंट यहाँ पर, मतलब आई मीन टू से दैट दिस कुड हैव बीन मोर जनरल, अगर देखें तो यहाँ पर भी। तो एक मिनट। तो ना मैं जनरल, तो ये आपका प्रोसेस चला यहाँ से यहाँ 3 to 4 4 to 1, ठीक है, और आप यहाँ, फिर आपने क्या करा, इसको रिपीट किया और अब आप रीहीट कर, ये आपने यहाँ तक किया। रीहीट कैसे किया, तो बेसिकली आपने हीटिंग कहाँ कहाँ करी, एक तो आपने यहाँ हीट ऐड करी, फिर एक्सपैंड करा एक टरबाइन, ये हो गई आपकी हाई प्रेशर टरबाइन। फिर उसके बाद आपने इसे वापस से हीट किया और इसे लो प्रेशर टरबाइन में वापस से expand किया। आप देख सकते हो कि आप यहाँ गिरते, बट अब आप यहाँ के गिरे हो, मतलब आपका एक्स इंक्रीज। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रीहीट। अब ऐसा करने का क्या फायदा हुआ, ऐसा करने का फायदा ये हुआ कि एक्स इंक्रीज, अब आप यहाँ पर हायर बॉयलर प्रेशर यूज कर सकते हैं, बट अकेला रीहीटिंग करोगे आप, सिर्फ रीहीट करोगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो कहना भी बड़ा मुश्किल है। तो इफ यू आर ओनली रीहीटिंग, अगर आप इसको बिना रीहीट से कंपेयर करोगे, कीपिंग पीबी एंड पीसी कांस्टेंट, इसको 10 बार ले लो अगर, या इसको 30 बार 20 बार ले लो, इसको 40 बार ले लिया और इसको आपने पॉइंट बन दिया, और आप 40 और इसी प्रेशर डिफरेंस के बीच में अगर कंपेयर करोगे तो आप कह नहीं सकते कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, ओनली रीडिंग इज कंपेयर is compared with without reheating. Keeping PB and PC से होगा ये कि एफिशिएंसी में इंक्रीज और एफिशिएंसी में डिक्रीज। क्यों? कि अगर आप देखोगे कि आपने आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन अभी क्या है और पहले क्या था, उसमें नेट इजाफा हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज, क्योंकि अभी आपका एक मीन ये आ गया है और एक मीन, अब इन दोनों का मीन ये होगा, लेट्स से ये, अब ये लाइन पुरानी लाइन से ऊपर है या नीचे है, दैट विल डिसाइड वेदर द एफिशिएंसी विल इंक्रीज इन जनरल, वेदर द एफिशिएंसी विल इंक्रीज और नेट डिक्रीज, क्योंकि हो सकता है कि आप रीहीटिंग ना करते हो, आप यहाँ तक जाते और यहाँ से तो नीचे मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट, आपका मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट तक नहीं है, व्हाटएवर देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, सो इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड जब तक चीजें स्पेसिफाइड ना, बट ओवरऑल इफेक्ट यही आएगा, ओवरऑल इफेक्ट वुड बी दैट
your efficiency will at the end जब आप सारी चीजें एम्प्लॉय करोगे तो efficiency रीहीटिंग इसलिए करते हैं ताकि आपका जो पॉइंट टू है वो आगे की तरफ हो, राइट? दैट्स व्हाई वी डू। इसका सेटअप मैं आपको बना दूँ। हाउ डू वी डू इट? हम सबसे पहले क्या किए, बॉयलर से स्टार्ट किया अपना बॉयलर को अपनी हीट सप्लाई करी। ये 4 पॉइंट है, 4 से आप लेट से फॉर एग्जांपल ये 1 पॉइंट हाईलाइट करता हूँ, लेकिन 1 2 3 4। चलिए 5 से स्टार्ट करते हैं। सो 5 से 1 जब गया, तो वी हैव सप्लाइड बेसिकली, ये आपका बेसिकली सॉरी, this will be basically transferring heat with the surrounding, supplying heat from the surrounding। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 से 2 टरबाइन में वर्क करेंगे। 1 से 2 आपका टरबाइन में 1 2 से 3 आप वापस से बॉयलर में एक रीहीटर लगा हुआ होगा, उसमें हीटिंग होगी, यहीं पर अटैच होगा आपका रीहीटर। दिस इज योर बेसिकली रीहीटर। सो 2 to 1 to 2 2 to 4, this has to be made 3 also। This is 4, this is 1, this is numbering change। 1 2 3 4। This is now 6। स्टार्टिंग हमेशा टरबाइन से करते हैं, तो 1 to 2 ना, ये हाई प्रेशर टरबाइन हो गया, यहाँ से आपको फिर 2 to 3 आपका रीहीटिंग हो, 3 to 4 वापस से आपने एक्सपेंशन करा है किसी दूसरी टरबाइन में, क्योंकि लो प्रेशर हैंडल कर, लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर से मतलब एटमॉस्फेयर से लो नहीं, मतलब रिलेटिवली जो हाई प्रेशर है उससे, और ये आपको टरबाइन के प्रेशर पे लाके लो कंडेंसर के प्रेशर पे लाके 4 to 5 आप फेज चेंज करो कंडेंसर के, और 5 to 6 आपके पास एक पंप होगा, जिस पंप को आप यहाँ पर आपको 2 स्टेजेस में, ये आपका सप्लाई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बाकी सब पैरामीटर सेम रख के दोनों को कंपेयर करके देखेंगे ताकि वैल्यूज के साथ चीज़ हो।
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीहीट आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर कि रीहीट से आपका एक्स आगे जाके गिरेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो डिपेंड करेगी हीट टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ओवरऑल इंक्रीज हुआ है ना decrease हुआ है या सेम। यहाँ पर अब आपकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसकी? एफिशिएंसी वुड बी नथिंग टरबाइन नेटवर्क आपने WT1 WT2 माइनस पंप अपॉन हीट सप्लाई। आपने QS सप्लाई करी है और क्या सप्लाई किया है? बस आपने तो यहाँ सप्लाई करी है प्लस थोड़ा बहुत आपने, अगर आप बेसिकली ऐसे देखें तो एक तो आपने 1 to 6 to 1 सप्लाई करा है H1 माइनस H6 प्लस आपने 2 to 3 भी सप्लाई करा है H2 माइनस H3 ये टोटल हीट सप्लाई। इनफैक्ट 2 to 3 जब आप जा रहे हैं तो 3 इज एट हायर एंड 3 to 2। So this is how you can calculate efficiency and you see how to solve numericals in the let's stop sharing now and convert this into PDF and upload. Okay, you can take it.